Hello everyone, welcome back to my lecture. In the previous lectures, in the previous two lectures of D and A block element chapter, we have gone through the concepts of metallurgy and also we have seen the extraction of iron in details. उसके पहले लेक्चर्स में हमने देखा है द केमिस्ट्री ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अभी हम आज शुरू करेंगे द केमिस्ट्री ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स. बट बिफोर दैट लेट मी टेल you know that the elements which are present in the periodic table, they are classified into four blocks: S block, P block, D block and A block elements. The elements in which the last electron, or I will say here differentiating electron, enters in the F subshell or F orbital, they are known as F block elements. So the elements in which the last electron, or I will say here differentiating electron, enters in the F subshell are called as F block elements. Actually F block element जो है इनका होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज n-2 F1 to 14, n-1 D0 to 1 and ns2. ये है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, where n is nothing but principal quantum number of the लास्ट वैलेंस शेल. तो ये है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड इफ यू सी प्रॉपरली ए ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स. फर्स्ट वन एक्टिनाइट्स, फर्स्ट वन आर लैंथेनाइट्स. First one are lanthanides, and the second one they are nothing but actinides. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे lanthanides की, so for lanthanides the value of n, yes, the value of n is equal to 6. And for actinides here the value of n is equal to 7. So अगर हमें लिखने का है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या आएगा वो n-2 यहाँ पे, तो क्या आएगा 6-2 is yes, ये आएगा 4f 1 to 14, n-1d, n मतलब यहाँ पे है 6 तो n-1 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 6-1 is 5. सो यहाँ पे आना चाहिए 5d 0 to 1 and 6s2. ये है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इन केस ऑफ एक्टिनाइड्स द वैल्यू ऑफ n हियर विल बी इक्वल टू 7. सो 7-2 यहाँ पे आना चाहिए फिर 5f yes 1 to 14 yes, बाद में यहाँ पे आएगा 6d 0 to 1 and 7s2. So ये आएगा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. So we can say here there are the two series and you know that in the periodic table they are placed at the bottom, lanthanides as well as actinides. Okay, so overall we can say here
For lanthanides, they are also known as a 4f series elements, and for actinides, they are known as a, they are known as a 5f series. Because you can see here, electrons will enter in the 4f series here, and for here actinides, we can say electrons will enter in the 5f series. That's why they are also known as a 4f and 5f series. Now these elements, they are also known as inner transition elements. The reason is that that comparatively 4f और 5f की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, they are present inner than the 5d and yes 4d और 6d series. So I mean orbitals. तो ये है. और एक बात, if you see their position in the periodic table, their characteristics, they are in between the electropositive elements as well as electronegative elements. That's why they are also known as inner transition elements. Okay, so they show the transition of property between the electropositive elements as well as electronegative elements. So we can say why they are also known as inner transition elements. तो ये है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अभी ये जो ए ब्लॉक एलिमेंट्स है, इन्हें हम एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे सो दैट वी कैन स्टडी देम प्रॉपरली. सो आज पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे द टॉपिक लैंथेनाइड्स. Lanthanoids. Okay, so as I told you, they have general electronic configuration as 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 and 6s2. If you see their position, so I will write here regarding the position of lanthanides. Position. So obviously you know that all these lanthanide elements, they are the part of third group elements. They are the part of third group elements. You know that first one group is alkali metals, second A group is that of alkaline earth metals, and the third group in which lanthanides they are placed. Okay, you know that they are placed at the bottom. They are placed at the bottom of periodic table in first row. So if you see them properly, उसका जो पोजीशन है, आई मीन इनका जो पोजीशन है लैंथेनाइड्स का, इट कैन बी जस्टिफाइड बिकॉज द ग्रुप वैलेंसी ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स, ग्रुप वैलेंसी ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स इज नथिंग बट इक्वल टू 3. सो मोस्ट ऑफ देम आल्सो शोज हियर +3 एज देयर प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट. वी कैन से इफ यू सी देम प्रॉपरली, there is the presence of 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. दो यहाँ पे है 6s में और 5d में होता है यहाँ पे एक, तो यहाँ पे होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो there is the presence of 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स because the energy between the 5d and 6s is nearly same, so they can lost 3 electrons. Hence we can say their group valency is nothing but equal to 3. Okay, then one more thing here you have to say, their properties are similar. Their physical and chemical properties are similar. Their properties are almost similar. Okay, they are placed at the bottom. So the reason is that they are placed at the bottom because
the symmetry of periodic table should not be disturbed. Actually, if you see lanthanides, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो the first element of the lanthanides actually is a lanthanum. Lanthanum is the element, and because of that, lanthanum is the element, and because of that, all the preceding elements after lanthanum, they are known as the lanthanides. अगर हम इन lanthanides को प्लेस करते मॉडर्न पीरियड टेबल में, तो वो जो सिमेट्री है पीरियड टेबल की, ये टोटली हो जाते डिस्टर्ब. सो टू avoid this disturbance in the symmetry of the periodic table, they are placed at the bottom of the periodic table. So these points, they can justify their position at the bottom of the modern periodic table. Okay, so overall this thing we have to remember. I think you first of all note these points properly in your notebooks. Let's see now the next topic, that is nothing but electronic configuration. Now, how to remember the names of these elements? For that I will give you a trick. You know that the first element is lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, yes, thulium, ytterbium, lutetium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Actually, lanthanum is the element. It is present, at the not at the bottom. So यहाँ से अभी हमको याद रखना है, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 and 71. So we can say for lanthanides, starting from atomic number 58 to 71, and for actinides starting from atomic number 90, for actinides 90 से लेकर 103 तक आएंगे atomic numbers for actinides. And for lanthanides I told you from 58 to 71. Now जैसे कि मैंने कहा, इनके जो नाम है सीरियम, प्रासोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, होल्मियम, इर्बियम, थुलियम, यटर्बियम एंड लुटेटियम. ये एलिमेंट्स को हम लोग कैसे याद रखें? फॉर दैट आई विल गिव यू ट्रिक. अगर आपको लगे उसे यूज करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन सिंपली रिमेंबर. तो यहाँ पे आई विल राइट हियर द फर्स्ट ट्रिक. आई विल राइट सीने पर नदियों का, सीने पर नदियों का प्रेम समाया. यू गदगद तब दिल हुआ
अरे अरे तुम यारो लूट बाबू। ठीक है, ये एक तरीका है। या फिर दूसरा भी एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, सीमा पर, सीमा, यू नो इट्स अ बाउंड्री ऑफ द कंट्री, सीमा पर ना, सीमा पर ना दो पीएम, पीएम इज फॉर प्राइम मिनिस्टर, सीमा पर ना दो पीएम सामान, यू गद्दारी, यू गद्दारी तब, या फिर यू गद्दार, यू गद्दार तबाही, यू गद्दार तबाही, यस, दोबारा होगी और तुम यस, और तुम फिर लूटोगे, ओके, और तुम फिर लूटोगे। सो इन दोनों में से अगर आपको कुछ लगता है ट्रिक याद रखने का, तो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज आई टोल्ड यू द सिंपल वे यू कैन डायरेक्टली रन दिस नेम्स। Now, the next important part, I will say the most important part of the A block topic here, electronic configuration, कैसे लिखने का है उनका। So, I will write the elements here first of all. Elements, lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, and last one is nothing but lutetium. The next is here nothing but atomic numbers. Yes. So the lanthanum जो है, you know that starting from I told you 57 से लेकर 57, then 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, ये है इनके एटॉमिक नंबर्स। ओके, नाउ we have to write here, actually first of all I will write here observed electronic configuration, and the next one is here idealize electronic configuration, because from the spectral studies it is observed that there is deviation in the electronic configuration. That's why here we will write the two type of electronic configuration. देखिए लैंथैनम से जो पहले आता है इनर्ट गैस वो होता है xenon,
और जेनॉन का यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर 54। सो अगर हमने यहाँ पे लिखा जेनॉन को तो 54 तक लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यस, सो दिस ट्रिक फॉर रिमेंबरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये आपको याद हो गया तो किसी भी क्वेश्चन का मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज टेक इट सीरियसली एंड लुक एट द बोर्ड हियर। xenon we have to write everywhere, xenon. सो 54 तक तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नहीं, यू नो दैट। इसके बाद में आएगा 4F सेल, 4F आएगा, 4F के बाद में आता है 5D और उसके बाद आता है 6S। सो आई विल राइट हियर 4F 5D 6S फॉर ऑल। 4F 5D मैं लिख लेता हूँ सबके लिए, 4F 5D एंड 6S एवरीवेयर यू हैव टू राइट। ओके, सो हमने अभी लिख लिया है सबके लिए एक ही चीज, क्या? वी हैव टू राइट हियर 4A 5D एंड 6S। 6S 2 सबके लिए कांस्टेंट है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हियर, तो यहां पे मैं 2 लिख लेता हूं। फॉर एवरीवेयर वी हैव टू राइट हियर द 2 इलेक्ट्रॉन्स कंपल्सरीली इन द 6S सबशेल। सो यहां पे ये 2 हो गया, ठीक है। अभी देखिए जो सबसे पहला वाला एलिमेंट है, अगर आप इनको काउंट करोगे सो दे विल कम 15। इफ वी इंक्लूड हियर लैंथेनम तो ये मिला के हो जाएंगे 15। बट एक्चुअली आई टोल्ड यू लैंथेनम इज नॉट पार्ट ऑफ दिस। लैंथेनम कहाँ पे होता है? ऊपर होता है, तो 14 + 1 हो जाएगा 15। तो ऐसे में जो है सबसे फर्स्ट, जो है सबसे लास्ट और है मिडल वाला, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और इनके लिए याद रखो आएगा 5D1 फॉर GD also 5D1 एंड फॉर LU also 5D1। बाकी सबके लिए देखो मैंने क्या बोला आपको, फर्स्ट वन, मिडल वन एंड द लास्ट वन, इनके लिए आएगा 5D1। बाकी सभी एलिमेंट्स के लिए आपको लिखने का है बस 5D0। 5D0 एवरीवेयर यू हैव टू राइट ओनली 5D0, सब सिर्फ इन एलिमेंट्स को छोड़कर। तो ये मैंने लिख लिया अभी 5D0, ठीक है। 4F की अगर हम यहां पे बात करेंगे तो आपको इधर ध्यान में रखने का है, यहां पे 1 और 8 नहीं आएगा। While writing the electrons for 4F there will not be presence of 1, तो यहां पे 1 नहीं आएगा, उसके बदले में 7, मतलब 8 की जगह पे यहां पे 7 आएगा डबल, ओके। और यहां पे भी आएगा एट द एंड 14 आएगा डबल। वेरी सिंपल, आई विल टेल यू द ट्रिक हियर। इफ यू राइट हियर फ्रॉम द 4F हियर, 4F यहां पे एज आई टोल्ड यू आएगा 0, यस, देन 2 3 4 5 6 7। मैंने बोला था आपको कि इसमें क्या होगा, इसमें 8 नहीं आएगा तो 7 आएगा डबल, तो यहाँ पे आएगा 7, ओके। अभी इसकी जगह पे अभी आना चाहिए था यहाँ पे 8, लेकिन अभी यहाँ पे लिखा क्या है, लिखा है 7। अभी बाद में इधर आएगा फिर डायरेक्टली 9 10 11 12 13 14
and 14. If you write like this, now you can see we have written here complete electronic configuration for all the elements. This is nothing but the observed electronic configuration. बस आपको यहाँ पे ध्यान रखने का है कि यहाँ पे 1 और 8 नहीं आएगा, 14 जो है ये 14 आएगा डबल, और यहाँ पे 7 जो है ये यहाँ पे आएगा डबल. अदरवाइज एंड हियर 1 इज आल्सो मिसिंग. ओके, तो 0 2 3 4 5 6 7 7 and then 9 10. In this way, if you like write this, you can very easily write down the observed electronic configuration for all the lanthanide elements. Okay, so this is the way for remembering here idealized electronic configuration. बस आपको एक काम करने का है. इन केस ऑफ आइडियलाइज यहाँ पे बस देखिए जेनॉन तो इधर फिक्स आएगा ही. 4f को आपको शुरू करना है 0 से लेकर yes and 14 तक लिखते जाने का. स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 0 1 2 3 14 तक लिखो. और 5D यहाँ पे बिल्कुल आएगा 1, सबके लिए 5D 1 आएगा, और 6s2 यहाँ पे सबके लिए कांस्टेंट है. तो 5D 1 एंड 6s2 सबके लिए यहाँ पे कॉमन आएगा. और जैसे कि मैंने आपको बोला है इधर क्या आएगा, xenon is constant and starting from the 0 and at the end there will be 14. इसमें 1 भी आएगा और 8 भी आएगा. सो वेरी सिंपल, 6s2 पहले लिखो सबके लिए, 5D सबके लिए 1 ही आएगा कांस्टेंट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, एंड और यहाँ पे 4f में 0 से लेकर क्या आएगा अप टू 14. 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 आएगा. 1 and 8 they were missing in case of observed electronic configuration. ठीक है. अभी इलेक्ट्रॉनिक जो मैंने लिखा है कॉन्फ़िगरेशन, इसके ऊपर हम लोगों को काफी इजी हो जाता है प्रेडिक्ट करना कौन सा स्टेबल होगा इनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट. फॉर एग्जांपल इफ यू सी इन केस ऑफ सीरियम, तो सीरियम अपने कौन से स्टेट में ज्यादा स्टेबल रहेगा हम देखेंगे. तो देखिए यहाँ पे, तो सीरियम की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो फॉर सीरियम दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो अगर सीरियम को चाहिए स्टेबिलिटी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा यहां से और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा यहां से. सो +4 सीरियम विल शो हियर +4 एज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मींस सीरियम के लिए +4 हो जाएगा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. इफ यू सी फॉर गैडोलिनियम, सी फॉर गैडोलिनियम, गैडोलिनियम की अगर हम यहां पे बात करेंगे तो देखिए ये 2 और ये एक 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा, तो गैडोलिनियम के लिए हो जाएगा +3 स्टेट. इट विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स ये यहां पे निकल जाएंगे और ये बचेगा 4f7. 4f7 you know that is nothing but the half filled orbital, and you know that completely filled and half filled orbitals, they are they are extraordinarily stable, or I will say they are more stable. तो इसीलिए गैडोलिनियम जो है it will show here +3 as its most stable state. सेम इन केस ऑफ Lu also if you see here, ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन को गवाएगा और फिर इसको मिलेगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जहां तक बात है Yb की, तो इधर यहाँ पे क्या आएगा, इट विल शो हियर द +2 स्टेट. सो इन दिस वे वी कैन प्रेडिक्ट विच विल बी मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऐसे इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ऑब्जर्व जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसी पे से हमें ये सब मतलब सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू शुड हैव टू रिमेंबर. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे La की, तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 और A1, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो जाएंगे. फिर यहाँ पे बचेगा जेनॉन जो कि ऑलरेडी होता है स्टेबल इसलिए क्योंकि इसके लिए ऑल द सेल्स होंगे कंप्लीटली फिल्ड
it will not take part in the chemical reactions. So we can say about the electronic configuration, and remember this trick. It's a very simple trick to remember. और एक बात, मैंने जो बोला है डिफरेंस आपको ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और आइडियलाइज में, इसको आपको ध्यान में रखने का है. सो आई विल सजेस्ट यू टू राइट डाउन all these details properly in your notebooks. Okay, now I told you this is the electronic configuration, and on this basis whatever the key points we have discussed that I have written on the board for your convenience purpose. Okay, इलेक्ट्रॉनिक, देखिए इसमें जो पहला पॉइंट दिया है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 56. सो 54 हो गए ज़ेनॉन के और 6s2 फिर आएगा बाद में. सो दिस विल बी नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरियम. लैंथैनम की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है लैंथैनम, इट विल हैव ज़ेनॉन 4f0 5d1 and 6s2 as electronic configuration. As lanthanum does not contain any 4f electron, it is not the part of a block element. Let me tell you, lanthanum is not the part of a block element, क्योंकि यहाँ पे कोई भी f electron present नहीं है. So this is the second point that you have to remember. Lanthanum is not an a block element. Okay. The next incoming electron after lanthanum does not enter into 5d subshell, but it enters into 4f subshell. If you see after lanthanum, इलेक्ट्रॉन जो भी एंटर हो रहे हैं वो एंटर कहाँ पे हो रहे हैं? इन द 4f सबशेल ओनली. ये तो हमने लिखा है ऑब्जर्व के बारे में. इन केस ऑफ आइडियलाइज जो आपको लिखने का है, आपको दोनों लिखने के हैं इन द नोटबुक, ऑब्जर्व एज वेल एज यस आइडियलाइज. सिंपल ट्रिक आई टोल्ड यू टू राइट दिस थिंग्स. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रॉन 5d में नहीं एंटर हो रहे हैं, वो एंटर कहाँ पे हो रहे हैं? इन द 4f ऑर्बिटल्स. ओके, सो अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला आपको द फर्स्ट वन, देन गैडोलिनियम एंड द एलयू, सिर्फ उन्हीं के लिए यहाँ पे क्या है 5d मैंने लिखा है. अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स दे आर एंटरिंग वेयर ओनली 4f सबशेल. ओके, देन एलिमेंट्स lanthanum, gadolinium as well as Lu possesses a single electron in the 5d. Yes, हमें यहाँ पे देखा कि इधर फर्स्ट वाला, मिडल वाला एंड लास्ट वाला. यस, बाकी इन केस ऑफ अदर एलिमेंट्स 5d इज टोटली एम्प्टी, वी कैन सी हियर. और 5d यहाँ पे 0 है. F0, F7 and F14 they are extra stable. They are extra stable क्योंकि F0 मतलब है इनकम्प्लीटली फील्ड, या फिर वी हैव टू से हियर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 4f0 है मतलब वो भी स्टेबल रहेगा. एंड इन केस ऑफ F7 इट्स अ हाफ फील्ड, एंड इन केस ऑफ F14 इट्स अ कंप्लीटली फील्ड. तो ये तीनों भी क्या रहेंगे? दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल. रिमेंबर द 4f इलेक्ट्रॉन्स इन द प्री पेनल्टीमेट दैट इज n-2 shell are totally shielded by higher outer orbitals. As I told you, इनका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f1 to 14, n-1 d, yes d 0 या फिर 1 and ns2. This is their general electronic configuration as I told you, isn't it? अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ns जो यहाँ पे शेल है, this ns shell is called as the outermost shell. n-1 को हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, एंड n-2 जो यहाँ पे शेल है इसको हम लोग बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल. लास्ट वन, लास्ट बट वन, और ये अंदर वाला. सो लास्ट शेल पेनल्टीमेट शेल, और इसको हम लोग बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल. The 4f electrons in the pre-penultimate, that is n-2 shell, are totally shielded by higher outer orbitals. तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि 4f जो है, 4f या फिर 5f जो होता है, they are present inside. Okay, so ये यहाँ पे शील्ड हो जाए, मतलब शील्ड रहेंगे. So these are the key points that you have to
नोट डाउन प्रॉपरली। इसके बाद अभी हम, जैसे मैंने अभी बात कही आपसे कि अगर आपको पता है कैसे लिखना है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप वेरी इजीली लिख सकते हो उनका कौन सा स्टेबल है ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी कुछ एग्जांपल मैंने लिखे थे पहले भी यहाँ पे। अभी just merely by looking at the electronic configuration we can predict which ions will be more stable, as I told you। जैसे कि है Gd3+ मैंने लिखा था, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सीरियम का यहाँ पे क्या आएगा, सीरियम का आएगा +4 स्टेट आएगा, इट विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, अभी जो मैंने लिखे हैं ब्लू मार्कर से Sm2+, यस, देन ये यूरेनियम 2+ as well as this Yb, they are good reducing agents, they are good reducing agents that you have to remember। और जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे ग्रीन मार्कर से, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेरियम है 4+, सेरियम 4+ है जो कि अपने हाईएस्ट स्टेट में है। तो आई टोल्ड यू कि अगर होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, देन इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए इन केस ऑफ टीबी यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ से जाएंगे 2, तो मतलब 4f हो जाएगा, यस, हाफ फिल, क्योंकि 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 2 अगर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे 9 की जगह पे 7 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो ये हो जाएगा, यस, हाफ फिल। सो दिस Tb4+ as well as Ce4+, they are nothing but the strong oxidizing agent, they are nothing but the strong oxidizing agent, this thing you have to remember। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि कौन सा स्टेट इनके लिए ज़्यादा स्टेबल होता है। सो अगर आप देखोगे इन सब के लिए +3 इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से सभी एलिमेंट जो है दे विल शो हियर +3 एज देयर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो अभी यहाँ हमारा यहाँ पे ये भी पॉइंट हुआ है कवर। सो आई जस्ट suggest you to write all these points properly in your notebooks। Now the next point is here, chemical reactivity of the lanthanides। देखिए स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ लैंथेनाइड्स जितने भी पहले के मेंबर्स है, आई मीन अर्लियर मेंबर्स, दे आर क्वाइट रिएक्टिव एंड दे आर रिएक्टिव जस्ट लाइक द कैल्शियम। You know that calcium forms a Ca2+ ion, in the same manner they will also form here Ln2+ ions, but as atomic number increases they behave more like a aluminium। So for example यहाँ पे दिया है मैंने Ln is nothing but any lanthanide here, generally it will gain the 3 electrons and then there is a formation of LnS। So this is given as it's a reduction potential value because reduction reaction happen here, gain of electron took place। यहाँ पे जो वैल्यू होता है इनवर्ट वैल्यू, आई मीन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज इसका जो रेंज है वो है -2.2 वोल्ट से लेकर -2.4 वोल्ट तक। बट इसके लिए यूरोपियम इज an exception, remember its value is -2 volt। okay, now lanthanides जो यहाँ पे है they can form here carbides, hydrides, oxides, nitrides, halides। let's see, the first one is here carbides। when lanthanides they are treated with carbon at a temperature 2500 degrees Celsius, then they can form here lanthanide carbides। okay, on reaction, actually on heating gently with hydrogen, lanthanides they can form here the type of hydride here, and they are nothing but here LnH3। okay, so in this way we can say here, to balance this reaction we have to write here twice। when lanthanides they react with oxygen, then they can form here the oxide of the type Ln3, actually here Ln2O3,
वो फॉर्म करेंगे, बिकॉज दे बिहेव लाइक एल्यूमिनियम, दिस आई सेड टू यू। तो एल्यूमिनियम जो जैसे फॉर्म करता है Al2O3, इन द सेम मैनर इट विल फॉर्म हियर Ln2O3। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे 2 है तो मुझे यहाँ पे 3 लिखना होगा, और मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 लिखना होगा। सो आई हैड टू राइट हियर 4। सो इन दिस वे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ lanthanide oxides here. Okay, then lanthanides on reaction with nitrogen, you know that the state of lanthanum is +3 here, oxygen का होता है -3, so there is a formation of just here Ln, I mean lanthanide nitride, but nitrogen is diatomic, so we have to write here N2। तो यहाँ पे भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा। इन द सेम मैनर अगर आपको ये कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है देखने का है तो you know that Ln will have +3, oxygen will have -2, doing cross multiplication, तो यहाँ पे आ जाएगा Ln2 and O3। so in this way it will form। next reaction with mineral acid, lanthanides they will react with mineral acid like HCl, and then there is a formation of LnCl3 with the liberation of H2 gas। okay, तो इधर भी हमको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पे H2 है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, एंड देन टू बैलेंस द Cl हियर, यस यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 3 Cl है, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। सो फॉर दैट वी नीड टू मल्टीप्लाई हियर विद 2, सो यहाँ पे हो जाएगा 6, दैट्स व्हाई आई विल राइट हियर 6। ओके, एंड नाउ टू बैलेंस H we have to write here 3, and to balance lanthanides we have to write here 2। in the same manner lanthanides जो है they will react with water, and then again they can form here lanthanide hydroxides along with the liberation of H2 gas। यहाँ पे भी H2 gas लिबरेट हो जाएगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3, so we have to write here 3। so in this way we can balance the reactions। so overall the reactions of general reactions मैंने यहाँ पे लिखे हैं बस, but just from this you can get the idea about how lanthanide show their chemical reactivity only। okay, now the next point is here color and spectra। you know that as the D block elements they show here DD transition, in the same manner that F block elements they show here FF transition। okay, so they will absorb just the particular radiation from the visible region, I mean from the electromagnetic spectrum। you know that when they will absorb certain radiation from the visible region, and then you know that how their color will appear। this point FF transition we can explain in the same way as we have done in the DD transition। तो यहाँ पे भी वही होगा, विजिबल रेंज में से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, और जैसे ही इसके एनर्जी बढ़ जाएगी इट विल इमिट द अदर टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर, वट एवर आई टोल्ड यू इन द कलर ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द सेम पॉइंट वी हैव टू राइट हियर। ओके, अभी हालांकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये लैंथेनाइड्स उनके M3+ जो भी रहेंगे आयंस, मेटल 3+ आयंस, they are showing the colors, they are showing the colors in their solid state as well as in their solution state also, because the reason is FF transition। लेकिन और इनमें अगर देखा जाए तो एक और है phenomenon, इन आयंस में 14 n F इलेक्ट्रॉन वाले 14 n F इलेक्ट्रॉन्स और NF इलेक्ट्रॉन्स वाले जो भी रहेंगे आयंस, they are having the same color। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो n लिखा है मैंने, n they are nothing but the integers, and these integers they have value starting from 1 to 13। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है प्राइजोडीनियम का 3+ आयन, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 4F2, सो यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, सो 14 - 2 is nothing but equal to 12, so there is a presence of here 12 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 14 - n F इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 12 है, और जो है यहाँ पे NF इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सीधे सीधे यहाँ पे आएंगे, मतलब कितने दिख रहे हैं यहाँ पे 12, सो ये है 12, सो 14 - NF इलेक्ट्रॉन्स एंड NF इलेक्ट्रॉन, इनमें डिफरेंस है। NF मतलब डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे, एंड इन केस ऑफ 14 - NF
हमको 14 में से ये दो वैल्यू मतलब माइनस करना होगा। सो यहाँ पे देखिए 12 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है 12, तो आप देख सकते हो इनके कलर्स भी बिल्कुल सेम है, आई मीन thulium 3+. In the same manner, neodymium and erbium, they are having the same state here, and you can see the number of f electrons. कितने यहाँ पे 4f3 है, and you can see here 4f11. अभी यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं 4f3, तो यहाँ पे जो n का वैल्यू है ये हो जाएगा 3. So 14 minus 3, yes 14 minus 3 is equal to 11, and here सीधा यहाँ पे आएगा nf इलेक्ट्रॉन, मतलब है 11 इलेक्ट्रॉन्स. तो देखिए इनमें 14 माइनस nf इलेक्ट्रॉन्स और nf इलेक्ट्रॉन्स सीधे इनके मतलब आयंस दे आर हैविंग द सेम कलर्स. ये दोनों ग्रीन कलर के हैं तो ये दोनों पिंक कलर के हैं. सो दिस इज अ डिफरेंट फिनोमिनॉन दैट वी हैव टू स्टडी इन केस ऑफ लैंथेनाइट्स. मेरे ख्याल से आज के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि जितना भी आज हमने यहाँ पे पढ़ा है, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू प्रॉपरली study this topic. Okay, especially I told you how to write the electronic configuration. These tricks are very helpful. In the next lecture we will start with the lanthanide contraction and the remaining details, as well as the properties of the actinides as well. Okay, till that time I will say that take care and keep studying. See you in the next lecture.